Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fine, safe and healthy at home. I am your educator from Commerce Zone. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you economics and BA. So students, today we are here to see standard 12th economics chapter number 2 indicators of economic development. So if you are seeing what are the indicators of the economic that we will see in this chapter. So students, as you all know, we are here with the chapter number 2 on the part 1 video, which means the first portion of the video. So now let us move on with a short introduction of the chapter from the textbook from a line to line manner in the further portion. So let us move on with the line to line explanation of the chapter in the further portion without any wastage of the time. So students, now let us move on with the chapter number 2 indicator of growth and development, which means the economic in a proper way from the line to line from the textbook. Let us move on with a short introduction of the chapter in the further portion. Introduction. The most important objective of various countries of the world, more so after the Second World War, has been the attainment of economic development. The nucleus of all economic thinking has been the attainment of economic development. The term economic growth and economic development has been popular after the Second World War 1939-1944. Since the developing country attempted to solve problems like unemployment, poverty, hunger, death, inequalities of income and wealth distribution, etc., it can be said that the awareness level of developing country towards attainment of development increased. Since developing countries started attempt to reduce the gap in per capita income level with the developed countries and to increase the standard of living through economic development. So it should be remembered that the need for improving the level of the economic development is not for developing country alone, but also for the development country. But for different reasons, developing countries aim to improve the standard of living of the people by reducing poverty and unemployment, while the developing country aims to maintain the prevailing higher standards of living. If we think this way, maintaining the economic growth is the aim of developed countries and attaining speedy economic development is the prime requirement of the developing country. General economic development and economic growth are considered to be the same. In past, the word growth and development were used interchangeably, but few economists have also considered economic growth and economic development as different. According to Professor M.S. Ursula Hicks, the solution for the economic problems of developing countries is economic development, and for developed country is economic growth. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अगर बात करें सारे कंट्री की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद सब सारे कंट्री का एक ही एम था और वो क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पैसों के तरीकों से अपने कंट्री को डेवलप करना, यही सारे कंट्री का एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या एम हम बोल सकते हैं. तो न्यूक्लियस के हिसाब से यानी सारे न्यूक्लियस यानी कॉमन, एक कॉमन इकोनॉमिक थिंकिंग जो है वो क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने कंट्री के लिए लाना, ये सबकी और देखा गया था. बट यहाँ पे दो टर्म यूज किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1944 तक हुआ था उसके बीच में ही ये दोनों वर्ड्स ज्यादा फेमस होते हुए दिखे थे. बट डेवलपिंग कंट्री जो है उन्होंने क्या किया, जैसे कि इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्री ने सिर्फ और सिर्फ ये अटेम्प्ट किया कि उनके प्रॉब्लम्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, भूखमरी या तो पैसे में इनइक्वलिटीज, किसी के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, किसी के पास कम इनकम आ रहा है, तो ये सारी चीजों को हटाने का इन्होंने ज्यादा कोशिश किया. और हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री को एक अवेयरनेस मिला कि उनको अपने कंट्री को डेवलप करना है, और डेवलपिंग कंट्री ने वो अवेयरनेस के थ्रू अपना पर कैपिटा इनकम लेवल में जो भी चेंजेस देखे गए उसको हटाने का कोशिश पूरा के पूरा गया. बट उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो डेवलप कंट्री भी कम या चुप नहीं था. डेवलप कंट्रीज ने भी क्या किया,
किया, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी उनके लोगों का अच्छा था उसको और अच्छा करके और आगे बढ़ने का कोशिश करते गए। और यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ कंट्री को डेवलप करना ही नहीं और डेवलपिंग कंट्री के लिए ही नहीं, जबकि डेवलप कंट्री के लिए भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट माना गया, वो भी बहुत सारे अलग अलग रीजंस के लिए। डेवलपिंग कंट्री ने क्या किया, अपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा सुधार के, गरीबी हटा के, अनएम्प्लॉयमेंट को हटा के अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए कोशिश करते थे, जबकि डेवलप्ड कंट्री क्या करने लगे, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी अच्छा था और महंगा था उसको और बढ़ाने के लिए कोशिश करने लगे। सो इस तरीके से हम ये सोच सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को जो उनको मिल गया है, यानी जो सक्सेस उनको मिल गया है उसको मेंटेन करके आगे ग्रोथ करने की जो कोशिश है उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि डेवलप्ड कंट्री के लिए बोल सकते हैं। जबकि इकोनॉमिक का डेवलपमेंट यानी डेवलपिंग कंट्री के लिए पहले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना नेसेसरी था और वो उसके लिए स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ गए थे और ये इनका प्राइम रिक्वायरमेंट है, ऐसा भी माना जा सकता है। तो जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों एक ही है ऐसा कंसिडर किया जाता है, जबकि पुराने जमाने में ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता था। बट कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा का पूरा एक दूसरे से अलग होता है, जिसमें से प्रोफेसर मिसेस उर्सुला हिक्स के हिसाब से अगर आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन लाना है जो कि डेवलपिंग कंट्री के लिए होता है तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे अलग है और उसके क्या बेटरमेंट करने के चांसेस हमारे कंट्री ले रहे हैं और उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे जो इकोनॉमिक के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर टॉपिक, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Meaning of economic growth. Growth means economic growth. Economic growth relates to the long run increase in the total output of an economic. In economic growth, there is a continuous increase in the real national income and the real per capita income. Such growth is possible due to the increase in the supply of factors of production like land, capital, labor and entrepreneurial ability and increase in their productivity. In short, it can be said that the supply of the factors of production, their availability, productivity and efficiency tends to increase, leading to a continuous increase in a real national income and real per capita income. Thus, economic growth is an quantitative change. Economic growth shows the increase in output and gross national output through which a country's economic status is depreciated. It also helps in a comparative evaluations of economics of two countries. So, growth का मतलब क्या? The word growth चैप्टर के हेडिंग पे दिया गया, तो ग्रोथ का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करता है? लंबे समय तक का चीज़ों के बारे में सोचता है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक का जो आउटपुट होता है, टोटल आउटपुट, उसमें इंक्रीज करने का कोशिश किया जाता है। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो ये कंटिन्यूस इंक्रीज करता है रियल नेशनल इनकम के अंदर और रियल पर कैपिटा इनकम के अंदर। ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी जो है और उनकी इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी का जो एबिलिटी है ये बढ़ता कंटिन्यूस जाए। अगर शॉर्ट में हम कहें तो सप्लाई जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मिलता है और उनकी अवेलेबिलिटी का मिलता है और प्रोडक्शन का मिलता है, इवन उसकी जो एफिशिएंसी होती है चीज़ों को इंक्रीज करने का, वो कंटिन्यूसली जब इंक्रीज होता जाता है तब वो नेशनल इनकम में इंक्रीज लाता है और तभी वो पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज ला पाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव चेंज की तरह देखा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमें ये बताता है कि हमारे जो आउटपुट में जो इंक्रीज होता है वो कहीं ना कहीं ग्रोस नेशनल आउटपुट के थ्रू भी देखा जाता है और इकोनॉमिक स्टेटस को हम डेफिसिट यानी धोखा नहीं दे सकते, इसलिए हमें हेल्प आउट करता है कि हमें कंपैरेटिव इवैल्यूएशन जो है दो कंट्री का इकोनॉमिकली कर पाए, उसके लिए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अटेंड करने में हेल्प आउट करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमें यहाँ पे इतना डिटेल में बताया गया। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ।
Definition: economic growth refers to growth rate of national income or rise in total quantum of goods and services. So definition की बात करें तो प्रोफेसर हैंसन का फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ दिया गया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यहाँ पे रेफर किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जब नेशनल इनकम में ग्रोथ हो और टोटल गुड्स और सर्विसेज जो भी बनते हैं उसके टोटल क्वांटम में जब ग्रोथ देखा जाता है तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है प्रोफेसर हैंसन के हिसाब से। नेक्स्ट एक डेफिनेशन किया है, एक लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अ कैपेसिटी ऑफ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। साइमन कुजनेट्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म इंक्रीज, एक लंबा इंक्रीज जिसमें एक कैपेसिटी, एक कंट्री का कैपेसिटी जो है अलग अलग गुड्स को प्रोवाइड करके, प्रोड्यूस करके और लोगों तक पहुंचाने का जो कोशिश होता है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ये दो डेफिनेशन के बाद लेट अस मूव ऑन विद द लिमिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंज। यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करता है, अपने ध्यान में सिर्फ और सिर्फ नंबर, क्वांटिटेटिव चेंज जो होता है उसी के बारे में देखता है, ये क्वालिटी चेंजेस के बारे में मैटर नहीं रखता। इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बट द इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन एज बिफोर। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम का जो राइज है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने का कोशिश किया जाता है, बट इंस्टीट्यूशनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के पीछे वो सारी चीज़ों के बारे में कोई देखता नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड डेफिसिट्स ओनली द राइज इन द रेट ऑफ एंड एक्सटेंड ऑफ आउटपुट। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो ये बहुत ही छोटा है और ये सिर्फ और सिर्फ हमें यही बताता है कि रेट और आउटपुट में कैसे इंक्रीज करना है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर्स के बारे में ये हमें बताता नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट मच ऑफ यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने बोला, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम के बारे में सोचता है, बट यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों की वेलफेयर के लिए कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। तो ये 4 मेन लिमिटेशन इकोनॉमिक ग्रोथ का हमने देखा। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखेंगे, फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। आई होप दैट आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी, एज यूजुअल यू नो दैट जैसे ही हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं हम तुरंत एक छोटा सा समराइजेशन की ओर जाते हैं जिसमें हमने क्या टॉपिक देखा उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आज हमने जो टॉपिक देखा ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया जो कि इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक माना जाता है। सो इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने क्या देखा, इसका छोटा सा एक समराइजेशन ले लेते। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया कि जबकि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था जो कि 1939 से 44 तक चला, उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो सारे कंट्रियों ने अडॉप्ट किया था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। नॉर्मली जो डेवलपिंग कंट्री है उसने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचा, पॉवर्टी को कैसे हटाते हैं, पॉवर्टी को हटाने के बाद उनको कैसे उसको डेवलप करना है, लोगों के बीच में भूखमरी कैसे हटाना है, नेशनल इनकम कैसे बढ़ाना है, इकोनॉमिकली देश को स्टेबल कैसे करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हटाना है, लोगों के लिए क्या वेलफेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वालिटिव चेंजेस के बारे में बहुत सारी चीजें जो है सारे कंट्रियों ने एक मेन ऑब्जेक्टिव की तरह देखना शुरू किया था। जबकि अगर हम वही चीज डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, जहां एक तरफ जो डेवलपिंग कंट्री है वो अपनी डेवलपमेंट के लिए इतनी सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, वहीं जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी कुछ चुप बैठ नहीं रहा था। वो क्या कर रहा था, ऑलरेडी उनका जो इकोनॉमिकली वो
स्टेबल थे, फिर भी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का पूरा कोशिश वो करने लगे थे। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे पहले शुरुआत के टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को एक कॉमन टॉपिक माना जाता था, जो कि टाइम के साथ साथ जैसे आगे बढ़ते गए तो कुछ इकोनॉमिक्स ने ऐसे कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों एक अलग चीज होता है, जिसमें प्रोफेसर उर्सुला लिक्स ने ये बताया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पूरा अलग होता है। जो डेवलपिंग कंट्री है जिनमें से प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, वो प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन लाने की कोशिश करके खुद के कंट्री को जो आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे, क्योंकि अब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बट ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्री है जिनके पास सारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह सब सही है, फिर भी वो नहीं रुकने के बजाय और आगे बढ़ने की जो कोशिश करते हैं उसको बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में डिटेल में देखेंगे, ऐसा हमें इंट्रोडक्शन से ही पता चल गया था। उसके बाद हमने इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग देखा। अगर आप ग्रोथ वर्ड की बात करते तो ग्रोथ वर्ड इकोनॉमिक के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के तरीके से इंडिकेट किया जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या? ग्रोथ का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जो कि तुम्हारा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में डेवलपमेंट लाने की जो कोशिश किया जाता है, इंक्रीज करने की जो कोशिश किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जो डेवलप्ड कंट्री है जिनका ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, फिर भी वो जो है कंटिन्यूअस नेशनल इनकम में जो इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या क्या चीजों के बारे में डिटेल में देखता है। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते तो यहाँ पे हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई होती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये प्रोडक्टिविटी, ये सारे एफिशिएंसी में और इंक्रीज करने की जो कोशिश किया जाता है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ये कोशिश किया जाता है क्वांटम ऑफ गुड्स मतलब जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो टाइम टू टाइम और इंक्रीज ही होना चाहिए, ना कि डिक्रीज होना चाहिए। अगर वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा? तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होगा तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगा। अगर इस तरीके से इंक्रीज देखा जाएगा तो धीरे धीरे इकोनॉमिक और बढ़ता जाएगा और एक अच्छे लेवल पे पहुंचता जाएगा। दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में हमारा कंट्री और आगे बढ़ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो डेवलप्ड कंट्री है उन लोगों ने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन के बारे में। हमने दो लोगों का डेफिनेशन देखा, एक प्रोफेसर हैंसन और एक प्रोफेसर स्मेल कुड्सन का। सो व्हाट इज नाउ द हैंसन ने क्या बोला? हैंसन ने ये हमें बताया कि जब भी हम हमारा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने की जो कोशिश करते हैं, जिसके साथ हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स यानी नंबर ऑफ गुड्स भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी करने की कोशिश जो करते हैं उसको बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। बट कुडनेस के हिसाब से कुछ अलग ही बताया गया। कुडनेस ये कहते हैं कि जब भी हम कोई भी कंट्री के अंदर हम जो भी इकोनॉमिक गुड्स बनाते हैं यानी जो प्रोडक्टिविटी करते हैं उसमें वेरियस यानी बहुत अलग अलग टाइप के गुड्स बना के हमारे लोगों तक वो चीजों को डाइवर्स यानी बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज बना के डिफरेंट लोगों तक जब पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बताया है हमारे सैमुअल कुडनेस के हिसाब से। इसके बाद हमने लिमिटेशन के बारे में देखा। अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो लिमिटेशन 4 टॉपिक में बाइफरकेट यानी डिफरेंशिएट किया गया। फर्स्ट लिमिटेशन हमने ये देखा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी नंबर के चेंजेस में मानता है, ना कि ये क्वालिटेटिव चेंजेस में मानता है। और सेकंड, यहाँ पे कंटिन्यूअस जो है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का जो इंक्रीज है उसी के ऊपर कंसंट्रेशन किया जाता है, ना कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या जो है हमारे डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में सोचा जाता है। थर्ड में हमने ये देखा, लोगों के वेलफेयर के रिलेटेड यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं होता है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है नेशनल इनकम बढ़ाने की और ही देखता रहता है। फोर्थ पॉइंट हमने ये देखा कि नेशनल इनकम
तो बढ़ता है, बट उसके साथ लोगों की वेलफेयर होता है कि नहीं ये तो नहीं देखा जाता है। बट उसके साथ साथ क्या ये रियल पैरामीटर की ओर देखा जाता है? तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स पैरामीटर्स के और इसको बढ़ाने की ही कोशिश किया जाता है। ओवरऑल डेवलपमेंट कहीं पे देख नहीं पाते। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का टॉपिक आज हमने देखा। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक इन अ वेरी वेल मैनर। द रिमेनिंग पोर्शन वी विल सी इन द फर्दर पोर्शन. I hope that this video was an interesting video for you. Until the next interesting video is not coming, I hope that you all will be fine, safe and fit at home. Until that, Jai Hind, Jai Bharat.